Hello guys, welcome back to my YouTube channel Civil Services and Aspiration. So, we are going to start chapter 2nd of class 9 Geography Physical Features of India. Before we start, let me tell you that we have already made chapter 1 of class 9 Geography, that is India size and location. You can also see that video from the links given in the description and comment section below. So, let's start. You have already learned earlier that India is a vast country with varied landforms, means different type of landforms. What kind of terrain do you live in? If you live in plains, you are familiar with the vast stretches of plain land. In contrast, if you live in hilly region, the rugged terrain with mountains and valleys are common feature. In fact, our country has practically all the major physical features of India. Means हमारी इंडिया में जितने भी तरह की लैंडफॉर्म फिजिकल फीचर्स अर्थ पे है अलग अलग कंट्रीज में वो सब मिलाकर हमारी कंट्री में भी हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज एंड आइलैंड. You must be wondering how these physical features have been formed. We will learn more about major physical features of India and how they have been formed. Next, we find different type of rocks. Some are very hard like marble, which has been used for making the Taj Mahal, and some are very soft like soapstone, which is used in talcum powder. The color of soil varies from one place to another. आपने भी देखा होगा कि जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ जाते हैं तो सॉइल के कलर में डिफरेंस आता है. ये डिफरेंस क्यों होता है? बिकॉज द सॉइल इज फॉर्म्ड आउट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स. तो यानी कि अगर रॉक्स डिफरेंट है तो कलर भी डिफरेंट होगा. Have you ever thought about the causes of these variations? Most of these variations are caused due to differences in rock formation. India is a large landmass formed during different geological periods which have influenced the relief. Besides geological formation, a number of processes such as weathering, erosion, and deposition have created and modified the relief to its present form. Here you can understand that for the making of this different relief, different physical features, you need to know about the conditions like weathering, erosion, and deposition. These are major factors responsible for difference. Earth scientists have attempted to explain the formation of physical features with the help of some theories based on certain evidences. One such plausible theory is theory of plate tectonics. So according to this theory, the crust means the upper part of the earth has been formed out of 7 major and some minor plates. Means जो earth का upper वाला part है, the upper crust is formed by the major and minor plates. So the question arises in your mind that what are plates? So let me tell you that plate are the piece of land. So according to theory of plate tectonics, the earth crust is made of major and minor plates. The movement of plates result in the building of stress within the plates and continental rocks above, leading to in movement इन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से कुछ एक्टिविटीज़ होती है लैंड के अंदर, जैसे कि फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़. दीज प्लेट्स मूवमेंट आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. मतलब जो इनकी प्लेट्स की मूवमेंट है उसके बेसिस पे इन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. जैसे कि while some plates come toward each other form convergent boundary, you can see in this first picture that they are coming towards each other. Okay, now let's see other. Some plates move away from each other and form divergent boundary. तो जो पहले देखा हम convergent यानी कि जो एक दूसरे की तरफ आती है उन्हें कहते हैं convergent boundary, and जो एक दूसरे से दूर जाती हैं उन्हें कहते हैं हम divergent boundary. In the event of two plates coming together, they may collide. जब ये दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे की तरफ आएंगे तो चांसेस है कि वो दोनों आपस में टकरा जाए and crumble or may slide
अदर अंडर द अदर, और ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे आ जाए. एट द टाइम्स दे ऑल्सो मूव हॉरिजॉन्टली. तो इसकी वजह से कुछ प्लेट्स हॉरिजॉन्टल भी मूव करती है, यानी कि you can see in this third picture. Moving further, so this is the world map giving some plates, that this is Eurasian plate, African plate here, this is Indo-Australian plate, South American plate, North American plate, and this is the part of the Eurasian plates. Each other and form transform boundary. The movement of these plates have changed the position and size of the continent. मतलब जो इन प्लेट की मूवमेंट होती है, इसकी वजह से जो लैंड होती है उसके पोजीशन में, उसके साइज में, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें डिफरेंस आया ओवर अ मिलियंस ऑफ ईयर्स. सच मूवमेंट हैव ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर्स, जिसकी वजह से आज के टाइम में भी हम काफ़ी चेंजेस देख सकते हैं. द ओल्डेस्ट लैंड मास, यानी कि द पेनिनसुलर पार्ट वॉज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, यानी कि जो ये सबसे पुराना लैंड मास है, जो सबसे पुराना धरती का टुकड़ा है, लैंड का पीस है, वो था गोंडवाना लैंड. अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड थी? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका. दीज ऑल आर ओनली अ one single landmass. The conventional currents split the crust into number of pieces, thus leading to the drifting. जो ये कन्वेंशनल करंट हुआ, इसकी वजह से जो ये प्लेट्स थी उनमें दरार पड़ने लगी और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, जिसकी वजह से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो सेपरेट हो गई गोंडवाना लैंड से और नॉर्थ की तरफ मूव करने लगी. The northward drift resulted in the collision of the plate with a much larger Eurasian plate. तो जो ये लैंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब ऊपर की तरफ गई, नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ में थी यूरेशियन प्लेट, तो उससे जाके टकरा गई. ड्यू टू दिस कॉलिजन, इस कॉलिजन की वजह से द सेडिमेंट्री रॉक which were accumulated in the genocylin known as तिथीज were folded to form माउंटेन सिस्टम. इस कॉलिजन की वजह से यहाँ पे किस चीज़ की निर्माण हुआ, यानी कि क्या चीज़ बना, वो थे द फोल्ड माउंटेन सिस्टम. फोल्डेड टू, जो कि आज के टाइम में हम वेस्टर्न एशिया और हिमालय में देख सकते हैं. So what is Gondwana land? So it is the southern part of the ancient supercontinent Pangaea and Angara land in the northern part. The Himalayan uplift of the Tethys Sea and subsidence of the northern flank of the peninsular plateau resulted in the formation of large basin. इसकी uplift की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा बेसिन बन गया पेनिनसुलर प्लेट्यू में. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, धीरे धीरे टाइम के साथ, दिस डिप्रेशन ग्रेजुअली गॉट फिल्ड विद डिपोजिशन एंड सेडिमेंट्स बाय द रिवर. इसके अंदर धीरे धीरे भरता गया, सेडिमेंट्स आते गए, रिवर के थ्रू जो स्टोन्स और पेबल्स थे वो भी आके इसमें भरते गए, तो जिसकी वजह से अ फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव एलुवियल डिपोजिट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नदर्न प्लेन, जिसकी वजह से ये बढ़ता गया और एक फ्लैट लैंड बन गया, तो जिसे आज हम टाइम में नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया बोलते हैं. द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज अ ग्रेट फिजिकल वेरिएशन, बहुत सारे फिजिकल वेरिएशंस दिखते हैं. जियोलॉजिकली पेनिनसुलर प्लेट्यू कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द एशियंट लैंडमास ऑन द अर्थ सरफेस. मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इट इज़ द एंशियंट लैंडमास, सबसे पुराना अर्थ सरफेस का सबसे पुराना लैंडमास है. इट इज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक, और इसे सबसे ज़्यादा स्टेबल, स्थिर माना गया है. द हिमालयन एंड द नदर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म. जो हिमालयास और नदर्न प्लेन है वो बहुत रिसेंट लैंडफॉर्म्स हैं इंडिया में. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जियोलॉजी,
हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। जो हिमालयन माउंटेन्स है वो बहुत ही अनस्टेबल जोन में है। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय, जो पूरा माउंटेन सिस्टम है हिमालय का, वो रिप्रेजेंट करता है वेरी यूथफुल टोपोग्राफी, बहुत ही यूथफुल टोपोग्राफी को डिपिक्ट करता है, हैविंग हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। नदर्न प्लेन आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपोजिट। जो नदर्न प्लेन है वो एलुवियल डिपोजिट से बना है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ, जबकि पेनिनसुलर प्लेट्यू इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। अब हम एक एक करके इन सारे फीचर्स को देखते हैं। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन। सो वी विल स्टडी अबाउट वन बाय वन अबाउट हिमालयन माउंटेन्स, northern plains, peninsular plateau, Indian desert, coastal plains and the islands. So let's start. Firstly, let's see the Himalayan mountains. The Himalayas, geologically very young. मैंने अभी आपको बताया बहुत ही recent creation है ये, तो young and structurally fold mountain stretch over the northern borders of India, north की side. These mountain ranges run in a west to east direction, यानी कि west से east की तरफ move करते हैं from Indus to Brahmaputra river. The Himalaya represent the loftiest and one of the most rugged mountain barrier of the world. मतलब जो ये mountains हैं ये एशिया को, यानी कि और आप कह सकते हैं दूसरी कंट्रीज से इंडिया में आने के लिए एक बैरियर का काम करते हैं। दे फॉर्म एन आर्क विच कवर डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर, यानी कि हिमालयास कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, अबाउट 2400 किलोमीटर। और जो इनकी विड्थ है, जो इनकी चौड़ाई है, वो है 400 किलोमीटर तो कश्मीर में, एंड टू 150 किलोमीटर, यानी कि 400 टू 150 किलोमीटर। The altitudinal variations are greater in the eastern half. जो altitudinal variations देखोगे आप वो ईस्ट की तरफ ज़्यादा दिखाई देंगी, जबकि वेस्ट की तरफ इतना नहीं है। The Himalaya consists of 3 parallel ranges. इसके साथ साथ हिमालय के साथ साथ 3 पैरेलल रेंजेस चलती हैं, इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। A number of valley lie between these ranges, और इन तीनों रेंजेस के बीच में बहुत सारी वैलीज होती है। The northernmost range is known as the Great or Inner Himalayas और हिमाद्री। सबसे पहली रेंज है ये द हिमाद्री। It is most continuous range consisting of the loftiest peak with an average height of 6000 meters, जो यानी कि इनके पीक्स है, इनकी माउंटेन्स है वो 6000 मीटर्स तक हाई होती हैं। इट कंटेन ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक, और जो ऑलमोस्ट जितनी भी फेमस पीक्स हैं वो सारी हिमाद्री रेंज में आती हैं। यू कैन सी इन दिस मैप अबाउट द हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। The fold of the Great Himalayas are asymmetrical in nature, means एक symmetry में नहीं है, different symmetries हैं। The core of this part of the Himalaya is composed of granite. core होता है बिल्कुल inner वाला part, जिसे अभी हिमाद्री बोला हमने, वो बना है ग्रेनाइट से। It is perennially snow-bound and a number of glaciers descend from these range, यानी कि इसी रेंज से, हिमाद्री रेंज से ही बहुत सारे ग्लेशियर्स निकलते हैं। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री। अब हम साउथ की तरफ बढ़ेंगे हिमाद्री के, तो हमें बहुत सारे रग्ड माउंटेन सिस्टम मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं हिमाचल और लेसर हिमालयस, विच यू कैन सी इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। The ranges are mainly composed of highly compressed and altered rocks. The altitude means the height is between 3700 to 4500 meter and the average width is 50 kilometer. While the Pir Panjal range form the longest and most important range, यानी कि हिमाचल रेंज की सबसे important रेंज है वो है पीर पंजल रेंज। After that, Dhauladhar and the Mahabharat range are also prominent ones. This range consists of famous valleys. अब कौन कौन सी famous valleys हैं? कश्मीर, कंगरा, कुल्लू वैली in हिमाचल प्रदेश. So this region is well known for its hill station. आपने भी सुना होगा
Nainital, Kullu, Manali, Shimla. These are the hill stations. Now let's talking about the third range, the outermost range of the Himalayas. So जो सबसे बाहर की तरफ आउटर साइड है हिमालयाज की, उन्हें बोलते हैं हम शिवालिक्स, and their width is 10 to 15 kilometer and a altitude of 900 to 1100 meters. These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayan ranges located further north. These valleys are covered with thick gravels and alluvium. The longitudinal valley lying between lesser Himalaya and the Shivalik, यानी कि जो 3 रेंजेस मैंने अभी आपको बताई. So these 3 ranges, let me tell you again. The first was Himandri, second was Himachal, and third was Shivalik. So between Shivalik and lesser Himalayas means हिमाचल रेंजेस. तो इन दोनों के बीच में वैलीज हैं जिसे दून्स बोला जाता है. आपने नाम भी सुना होगा, देहरादून, कोटली दून एंड पतली दून आर ऑल्सो नोन, वेल नोन दून्स. Besides the longitudinal division, the Himalayas have been divided on the basis of region. Longitudinal division तो अलग है जो हमने 3 रेंजेस पढ़ी. इसके अलावा भी ये वेस्ट टू ईस्ट अलग अलग डिवाइड की गई है. तो these divisions have been demarcated by river valley. अब किस के बेसिस है? ये बेसिस है river valleys की. जो हमने अभी रेंजेस पढ़ी वो on the basis of altitude, their height. So let's start. First, for example, the part of Himalaya lying between Indus and Satluj. इंदस और सतलुज के बीच में जो रेंजेस है उन्हें बोलते हैं हम पंजाब हिमालयास. What do we call? पंजाब हिमालयास, जिसे रीजनली कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयास भी कह सकते हैं. इंदस टू सतलुज, पंजाब हिमालयास. देन Satluj and Kali River is known as Kumaon Himalayas. Indus to Satluj, Punjab Himalayas. Satluj to Kali, Kumaon Himalayas. Kali and Teesta River demarcate the Nepal Himalayas, and Teesta to Dhiang rivers are known as Assam Himalayas. So these are the 4-5. So there are regional names also in these broad categories. Find out the regional name. आपको इनके names ढूंढने हैं regionally की अलग अलग जगह पर इन्हें अलग अलग बोला जाता है. So the Brahmaputra marks the easternmost boundary of the Himalaya. जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था हिमालयाज की में, from Indus to ब्रह्मपुत्र रिवर. तो ब्रह्मपुत्र ईस्टवर्ड है की तरफ है बिल्कुल. Beyond the Thiang Gorge, the Himalaya bends sharply toward the south and spread along the eastern boundary of India, जिसे बोलते हैं पूर्वांचल और the eastern hill and mountains. These hills running through northeastern states are mostly composed of strong sandstones which are सेडिमेंट्री रॉक्स. जैसे की तरफ हम ईस्ट की तरफ आते हैं तो यहाँ पर जो माउंटेन्स हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स से बने हुए हैं एंड कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, जिसे हम 7 सिस्टर स्टेट्स भी बोलते हैं. बिल्कुल ईस्टवर्ड डायरेक्शन में है जो ईस्ट इंडिया में. कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज. द पूर्वांचल comprises the Patkai Hills, Naga Hills, Manipur Hills and Mizo Hills. These are important hills in the eastward. Now moving further and let's see the northern plain. The northern plain have been formed by interplay of 3 major river systems. इसमें northern plain में 3 major systems काम करते हैं रिवर के, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, साथ के साथ इनकी ट्रिब्यूटरीज भी. दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल. द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन अ वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुटहिल्स ऑफ हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर. जो नदर्न प्लेन्स है ये जैसे ही हिमालयाज एंड होते हैं तो उसके फुटहिल्स में उसके साउथ की तरफ हमारा नदर्न प्लेन है.
इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. सो कितना एरिया कवर करते हैं? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग and 240 to 320 kilometer broad, and it is a densely populated physiographic division with rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate. It is a agriculturally a very productive part of India. आपने सुना भी होगा कि नदन में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, these are very rich in agriculture because of the water facility and the favorable climate are responsible for this. The rivers coming from the northern mountains are involved in depositional work. In the lower course, due to gentle slope, the velocity of river decreases, which result in the formation of riverine islands. तो जैसे ही हम साउथ की तरफ मूव करते हैं तो जो इस जेंटल स्लोप की वजह से जो रिवर की वेलोसिटी है, जो रिवर का वाटर फ्लोइंग है, वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से रिवराइन आइलैंड्स बन जाते हैं. This is a do you know fact that Majuli in the Brahmaputra river is the largest inhabited riverine island in the world. Majuli of the Brahmaputra river सबसे बड़ा inhabited riverine island है पूरे वर्ल्ड में. Moving forward, the river in their lower course split into numerous channels due to deposition of silts. सिल्ट्स की डिपोजिशन की वजह से ही जैसे ही रिवर्स अपनी लोअर कोर्स में पहुंचती हैं तो ये बहुत सारे चैनल्स में स्प्लिट हो जाती हैं, जिन्हें बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज. द नदर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन. देयर आर 3 सेक्शंस. जो वेस्टर्न पार्ट है नदर्न प्लेन का उसे पंजाब प्लेन्स बोलते हैं, जो कि फॉर्म हुआ है इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरी से. जो लार्जेस्ट पार्ट है इस प्लेन का वो ज़्यादातर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है, पाकिस्तान कंट्री में. द इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है इंदस की? झेलम, चेनाब, रावी, बियास एंड सतलुज, जो ओरिजिनेट होती हैं हिमालय से. दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय डोआब. So what is Doab? So Doab is made up of 2 words. Do means 2 and Ab means water. यानी कि 2 waters, यानी कि 2 rivers moving. Similarly, Punjab is also made up of 2 words. Panj means 5 and Ab means water. यानी कि there are 5 rivers in Punjab. That's why it is known as Punjab. So the Ganga plain. Firstly, we have studied about Indus plain. Now we are going to study about Ganga plain. So it is extended between Ghagar and Teesta river. It is spread over the state of North India, Haryana, Delhi, UP, Bihar and partially Jharkhand and West Bengal to the east. And particularly in Assam lies the Brahmaputra plain. इन सारे स्टेट्स में तो गंगा प्लेन है और असम की तरफ ब्रह्मपुत्र प्लेन है. द नदर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज, जो नदर्न प्लेन्स है वो जनरली उन्हें कहा जाता है कि फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशन. इट इज़ नॉट ट्रू, जबकि ऐसा सही नहीं है. दीज वास्ट प्लेन ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स, जबकि प्लेन्स में भी बहुत सारे रिलीफ फीचर्स होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस एंड रिलीफ फीचर्स द नदर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स. सो इन वेरिएशंस के अकॉर्डिंग ही नदर्न प्लेन को 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया है. द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपोजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ 8 to 16 किलोमीटर. माउंटेन से जो पेबल्स वगैरह आती हैं, स्टोन्स वगैरह आते हैं, वो एक नैरो बेल्ट बना लेती हैं, कन्वर्ट हो जाती है नैरो बेल्ट में, ऑफ 8 to 16 किलोमीटर लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ शिवालिक्स. शिवालिक्स अभी मैंने बताया जो बिल्कुल आउटर हिमालयाज है, वो उनके पास आके जिससे बोला जाता है भाबर. ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन द भाबर बेल्ट. जो जितनी भी स्ट्रीम्स होती हैं सब डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है. साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, जैसे जैसे साउथ की तरफ आती हैं तो ये रिवर्स है आपस में फिर इमर्ज होती है, जिसकी वजह से वेट, स्वैम्पी और मार्शी रीजन बोला जाता है, जिसे बोलते हैं हम तराई, नोन एज तराई. दिस वॉज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ. इस रीजन में बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ हो सकती है. अगर आपको मैं अच्छे से थोड़ा क्लियरली बताऊं तो ऑफ द स्टेट मध्य प्रदेश,
Chhattisgarh, Jharkhand, these are the states with thickly forested region and of full wildlife. The forests have been cleared to create agricultural land and to settle migrants from Pakistan after partition. पार्टीशन के बाद इन सारे फॉरेस्ट को क्लियर करवाना पड़ा क्योंकि जो माइग्रेंट्स थे पाकिस्तान से आए थे उन्हें सेटल करना था. तो आपके लिए हाँ एक क्वेश्चन है, लोकेट द दुधवा नेशनल पार्क. तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है. द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियल. जो सबसे बड़ा पार्ट है नदर्न प्लेन का वो ओल्डर एलुवियम से बना है. दे लाई अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर एंड प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर. जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं फ्लड प्लेन से ऊपर जो रिवर है वो टेरेस की तरफ फीचर्स बना लेते हैं जिसकी वजह से बोला जाता है इन्हें भंगार. द सॉइल in this region contain calcareous deposit locally known as कंकर. तो जो सॉइल में बहुत ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है इसकी वजह से इन्हें बोला जाता है इस रीजन को कंकर. द न्यूयर एंड द यंगर डिपोजिट ऑफ द फ्लड प्लेन आर कॉल्ड खादर. यानी कि जो हमने अभी पढ़ा जो ओल्ड एलुवियल थी उसे भाबर बोला जाता है एंड द न्यू एलुवियल इज नोन एज खादर एंड दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो फार are fertile and thus ideal for intensive agriculture. So this is all for today's video, means part 1 of this video, and the next topics will be covered in part 2. Till then, thank you for watching our video, and if you like it, please do like, share and subscribe to our channel.